जी गन्ना बेचते हो ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਗੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਗੰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 391 401 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਵੇ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। इसी से मुतलका ये एक है, ये इसी से मुतलका पहले वो सुने फिर आगे बात करेंगे। जी सामने शाह जी की हाल है? ठीक हो? सिद्धा पपीता ठीक ने? बहुत मैसेज ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਗੋਜਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 400 ਰੇਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ 400 ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੀਏ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ 450 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਛੌਲਾ ਪਿਆ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਤੇ ਅਵਲ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ 21 22 23। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 20 ਡੇਟ, ਸੌਰੀ 22। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ 21 ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਉਹ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ 2-4-5 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਮਿਲਣਾ ਅਸੀਂ 25 ਨੂੰ ਚਲਾਤੀ ਸੀ, 25 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ 26 ਨੂੰ ਚਲਾਤੀ, 27 28 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 400 ਰੁਪਇਆ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 450 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਦਿਨ 400 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 450 ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ CP 77 400, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸੀਜ਼ਨ। ਸੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਟਾਪ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਚੀਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ CP 77 400 ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ 400, ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 3-4 ਵਰਾਇਟੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 375 ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ 380 ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ, 370 ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ 450 ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 450 ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਸਟ ਸਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। लो जी, ये थे किंग कॉन्ग। ये वो मुबशर सदर साहब नहीं थे, ये अपने चौधरी अकबर साहब गुज्जर हैं। ये भी बड़े गन्ने के मास्टर हैं। ये भी गन्ना सूंघ के बता देते। लेट इस वजह से करते हैं, उसमें मिठास बढ़ जाती, रेट वो ही रहता है, तो उसमें वो पानी शानी डाल के जो भी करते होंगे मिठास बढ़ जाती, तो अब चीनी की क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। जो पहले की बात करते, पहला अदाकार है जे कितनी गहराई में गया। वो अदाकार डूम राशि जिसको कहते हैं, वो अदाकार CM पंजाब है उधर का। इधर वाली तो रांड गई हुई 10 दिनों के लिए टिकटॉक बनाने के लिए। वो कह रहे मैंने मिल वालों से भी बात की, फलाने से भी की, फलाने से भी की। वो भी फेडरल गवर्नमेंट को टोकते रहते हैं। फिर सूबाई लेवल पे उसने कहा, फिर उसने ये भी कहा मैंने शार्ट कर दिया वाजा जो बोल गया था कि चीनी वहाँ पे उनके 80 रुपये है, ठीक है जी। तो वो 401 रुपया दे रहे हैं रेट। इन्होंने बताया कि 375 400 हमने शुरू किया था वगैरह वगैरह। यहाँ तक कितनी बारीक भी नहीं में ये इंजीनियर साहब थे बहुत बड़े गन्ने के जो है, और गन्ना सूंघ के बताते हैं कितना इसमें से मिठास निकलने। जिधर वो भी कितना मेहनती है। एक डूम राशि, मतलब वो मैं उसकी नफरत में नहीं कह रहा, मतलब उसको क्या पता टींडा कितने वाजदा। वो बड़ी बारीक बीनी में गया और उसने जाकर रेट सेट किया, जिम्मेदार का भी ख्याल रखा, मिल वालों को समझाया
कितना यहाँ कार्टेल पाकिस्तान में कमाते हैं। कोई कहता है 160 किलो मिलती, कोई कहता है 140 में मिल रही पूरे पाकिस्तान में, रेट ज़्यादा है। तो ये मैंने कहता चलो हम भी ये बताएं कि अगर नीयत सही हो ना, नीयत सही हो तो जो है ना भगवान या अल्लाह ताला या अवतार या यसु मसीह जिसको भी कोई मानते हैं वो खुद मदद को आ जाते हैं। हमारा तो अल्लाह ताला पे यकीन है, तो इस वजह से मैं ये बता रहा था आपको। तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी वो केयर करता है। तो जब बंदा हो ना, नियत कर ले तो खुद ब खुद रास्ते खुलते हैं। अच्छा जी, एक तो ये बात हो गई। वो जो है ना शफा यूसुफ जई, मैं क्या उसको कहूँ, मुफ्त में पंगे ले रही भाई, जिप मुंह नु जिप ला, ये उसके हाथों में खेल रही है ब्रिस्टर साहब के, वो खुद दल्ला है आज सप्लाई करने वाला, तो इसको भी कहीं पेश कर देगा, देखना वो तो कोई न कोई लालच उसको देगा। बाजी हलीमा के साथ सिंह फसाया भी, जब आपके जिनके नीचे तो लेटती है वो आके पूरा पैगाम नहीं खान का देंगे, जो हदायत देते उस पर अमल नहीं करेंगे, तो बाजी ने तो कुड़ना पे ट्वीट ही करना है ना। तो मैंने कहा चलो उसको भी, सुलेमान को भी दे दी। ए खुराक किसको रह गई थी, ऐसे की बढ़ गया, ऐसे शफा यूसुफ जई बढ़ गई, तो इसको भी खुराक दे दी है। हमने पूरे भार के साथ चलना होता है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपने दी थी, खुल खिला के हमने ब्रेकिंग न्यूज़ उसके ऊपर किया, फिर ना कहना कि नहीं यार ये नहीं हुआ, वो दे दिया। अब आगे आपको ये आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान, उसके ऊपर भी हुआ ये जो है ना जो, चलो वो फिर कर देंगे, गंदी बात थी, गंदी बात, और तेरी मेरी गंदी बात, गंदी बात। हेलो सुन लो जी, अगे साका डॉलर की कह रहे हैं अनु की बढ़िया, इसके भी आपको सुनानी फरमाइश है जी, डॉलर ने की क्या, तो डॉलर की आपको सुना देते हैं। सर नीचे तारड़ है जिसकी ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने दी थी। गवर्नमेंट को ब्रीफिंग दी गई है, उसके मुताबिक हवाई फायरिंग जरूर हुई है, क्योंकि शायद लाइट उस एरिया में नहीं थी, आई वाज नॉट देयर, तो शायद सिंपली भाई को ज्यादा बेहतर फीडबैक हो। और वो भगदड़ जो मची है और जो लीडरशिप पे भगौड़े हुए भागे हैं, जिसकी क्लिप्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, दैट एक्चुअली क्रिएटेड ऑल दिस मेस। वरना अगर आराम से वापस भी जाते तो ये मेस नहीं होना था। तो अगर कोई जख्मी हुए हैं, कोई इस तरह का मसला है, तो मैं समझता हूँ कि वो उसकी वेरिफिकेशन जरूर होनी चाहिए। ये है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जब आगे से खूनी फायरिंग शुरू हो, हैं जी, मल्टीपल तरफ से फायरिंग शुरू हो बकौल शहजाद के, मैंने तो कहा चारों तरफ से शुरू हुई, 20-20 का जो आंकड़ा था, तो उन्होंने भागना ही था, भगौड़ा ही था। तेरा तो लीडर भज गया सी, तो आप भज गया, तूने एक पांजा भी नहीं लगा, थप्पड़ एक पड़ा था कर्नल साहब का, तो सब कुछ लिख के दे आया और वो वेरीफाई भी हुआ था। अच्छा, ये वाला बयान वहाँ पे अब मुस्तकबिल में ना ये ICJ में चल रहा है, इनका पढ़तू पढ़े हुए हैं, कल उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि ये जो इलीगल आर्मी चीफ है इसको किस चीज़ का ये फिक्र पड़ा हुआ ICJ में, तो यहाँ तो लटा लिया नीचे, वहाँ पे क्या करना है, क्यों उससे डरा हुआ है ICJ में। ये एक सुने जी, ये पेंटागन के एक अहदेदार का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिकी फौज को अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत और ज़मीनी रसाई दे दी है ताकि वो अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी को यकीनी बना सके। इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से अब तक कोई वाज़ेह बयान जारी नहीं किया गया है। अलबत्ता वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने चंद रोज पहले मीडिया से बात करते हुए इस बारे में इनकार किया था। उनका कहना था कि पाकिस्तान को अमेरिका को बेसिस देने का कोई इरादा नहीं है। हालिया पेंटागन बयान के बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा या किसी हुकूमती शख्सियत की तरफ से अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। तजज़ियाकारों का कहना है कि ये जो है हमीद, इसका नाम था, क्या था, वॉइस ऑफ अमेरिका में खबरें पढ़ता है, ये पुराना क्लिप शो कर रहे हो यूथियो, शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा था, वो करे दे दी
फ़ज़ाएँ तो उन्होंने पहले दे दी, एक्सटेंशन भी दी एयर चीफ मार्शल को। फिर उसके भाई को एमए ने कहा, कहाँ से वो सिंधु साहब को, वो जो है लाला मूसे से जी तो आया भी, तो ये लगे हुए बस जिधर आ जाए ये शुतर बेमहार है। तो बस इस तरह ही चलता है, जब कोई इनका लीडर कोई है ना बेउस्तादा जब होता है फिर ऐसे ही होता है। देखो जी कहाँ कहाँ से खबरें आपके लिए ला रहे हैं। हमजा यूसुफ, for all that I have been blessed to achieve in life. It was only recently when I mentioned to my father that I was giving an address at the Oxford Union did his face light up and did he beam with pride that finally one of his children is going to Oxford. Not any old university, of course, but one that legendary World Cup winning captain Imran Khan attended, no less. Could it get any better for my father? And as an aside, being in this wonderful, illustrious university, where ये जनाब अली स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर का जो है ना, ये डिप्टी मिनिस्टर से भी ऊपर होता है, ये इमरान खान की कर रहा है, तारीफ कर रहा है स्कॉटलैंड में। कितने कितने तारीफ उस खुदा की जिसने तुझे बनाया। तो ये भी इनको चुभता है, को भेजता ना जान के, हाफिज साहब है की हो गया, हाफिज साहब है की हो गया, हाफिज साहब भी बढ़ गया जी होते हैं जी। तो अच्छा जी, फिर एक और बात कर लेते हैं जी कि वो उसने ख़त लिखा है तंग आके इमरान खान के डर से, बैरिस्टर अली गौर खान है हस्पताल वालों को कि हमें लिस्टें दें फलाना दें, तो वो हमें CCTV दे मांगा उसमें से। फिर कम से कम इसको यहाँ पे मेरा आइडिया है, ओपनली या सीक्रेट यहाँ पे एक एजेंसी थोड़ा ही काम कर रही है, उनसे मदद मांग ली जाए, या सऊदी अरब से ख़त लिख के एम्बेसी को लिखा जाए जी हमने इस तरह में ये गवर्नमेंट कोई तामन नहीं कर रही, या MBS तक को ख़त यहाँ पे भेजोगे, किसी की ज़रूरत नहीं होती कि ये तो कर सकता है लीक कर ले, लेकिन ये नहीं हो सकता ख़त ना पहुँचाए। MBS को ख़त लिखे बाजी लीमा या बुशरा बीबी के मरसा ये ज़्यादती हो रही, अपना असर इस्तेमाल करें ना, हमें CCTV दे रहे ना हमारे अदालतों में, इन्होंने अपने जज बढ़ा दिए, पूरी डिटेल ख़त लिखें उनको, बड़ी सुपर पावरों को भी लिखें। जब अटैक का सख्त तगड़े बंदे पे करते हैं, चारों पांचों तरफ से करते हैं, ये हमसे सीख लो। उन्होंने हमारे एक ताल्लुक कर लेते सरफराज शाह साहब शेखुपुरे के रहने वाले थे, उनको जब शहीद किया गया था ना, तो चारों तरफ से गोलियां चलाई थी, चारों तरफ से, फिर जाके हुआ था। बस उसकी के वो फाड़ देता था, स्टालिन की तरह बंदा फाड़ देता था, टांग पे टांग रख के ना, कहता था यार अदालतों में जाएंगे तो ये तो वो, उनको कह रहा था उसको इकबाल वान मरहूम को, कहते फिर तुसी छड़ देंदे हो, तो मैं कि तुहाडे तक जाए ही ना केस, हुण तुसी छड्डो, मैनू भाई लोग खड़का रहा था उसको। तो ये करता था चारों तरफ से, इस हरामी पिल्ले के इलीगल आर्मी चीफ को भी चारों तरफ से अगर आपने ना घेरा डाला तो ये तो निकल जाएगा आपका, ऐसा सारे खाने कर लिए हैं उसने, कोई बंदा है ही नहीं जेड़ा पीछे से क्यादत जो डी हुई है, 5 खून दे प्यारे, एक अली मीन गंडापुर, एक वो शराबी कबाबी शिबली फराज, एक वो हरामी पिल्ला गौर यूब, फिर एक आ गए सुलेमान राजा, वजा देता उदा बाजा, ये 5-6 ही है ना। वो अब कायमा कमेटी का पता नहीं केड़ी मुज़ाकरात कमेटी में वो शाह साहब को डाल दिया, नासिर साहब को जो सेनेटर हैं, और गालबन शायद एक और बंदे को भी किसी को डाल दिया। वो बेचारा क्या करे, रंग बिरंगी 1 ओवर 6 बालें हैं, तो एक टिप भी करे तो 7 स्कोर चाहिए, तो फिर हर बाल पे तब्दील करनी पड़ती। यहाँ पे ये सूरत हाल आ चुकी है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला अक्ल सलीम दे, कुछ ना कुछ कर रहा है। बड़ों का हुक्म उसने क्या था, किसने, अकील ने, जो बात के चल रही थी, इलेक्शन कमीशन को कहा था, लेकिन कोई कहता मेजर साहब ने कह दिया, लेकिन उसने एग्जैक्ट ये कहा था कि जो बड़ों की तरफ से खाता आ गया तो वही, जो बड़ों की तरफ से हुक्म आ गया
वही आपने मान लिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।